Shanti, Shanti, Shanti. Yes. So, Lata Kundu, Samri. Yes, Maharaj. Can I start? Pranam Maharaj and Pranam to all present here. I will be summarizing the introduction and the first chapter of the book Sri Ramakrishna, the Great Master by Swami Sharadananda. The introduction starts by reminding the readers that the essence of Indian life is spirituality. Unlike other countries, the belief, ideals, and life of India as a nation and individual per se is based on spirituality and religion. The frequent births of great men in India may be the reason behind the importance of spirituality in Indian life. The belief in the idea of a divine incarnation originated in ancient India. In the Puranic age, the rishis of the Vedic period were recognized as incarnations of God because of the divine characteristics they possessed. In addition, the practice of worshipping the spiritual teacher has also helped in strengthening the idea of divine incarnation in this country. The essential idea about the characteristics of divine incarnation is recorded in the Smritis and Puranas. Divine incarnations are described as persons who, by nature, are eternally free, pure, and awakened. They, unlike ordinary people, do not get entangled in the actions of their own. The divine incarnation is also believed to possess unbroken memory, which initially remains latent but manifests once the person becomes matured in body and mind. The divine incarnation is also believed to realize quite early in their lives that the sole purpose of their coming among human is to re-establish religion. The Shastras also stated that the divine incarnation comes at a time and circumstance when human beings in general remain deluded by the power of Maya and spend more time in pursuing worldly pleasure rather than looking for self-liberation. The author concluded the chapter by reminding that India is conducive to the repeated coming of divine incarnations and end with a question as to whether the recurrence of a divine incarnation has occurred in India at this time. Next is the chapter, Need of the Age. In this chapter, the author introduces the need of the age, especially in the Indian context. The author starts by pointing out that the human civilization has progressed successfully in all fields of life and has gained immense power in knowledge and wealth. The center of this tremendous power and progress has originated from the Western countries. To understand the reason behind the progress of Western civilizations, we need a look into the history, which states that the severe cold climatic condition in these countries made the people intensely body conscious, which in turn made them focus their united effort towards fulfilling self-interest in the form of material comforts and wealth. Once these struggles for existence became easier, they looked for higher and noble pursuits, but these pursuits faced resistance from dogmatic religious beliefs and bigoted priesthoods. However, the spirit of self-effort and struggle helped them to overcome these religious resistance in the long run, but this effort also resulted in rejection of their religion and scriptures to a great extent.
Thus, the Western civilization started putting all their belief on things that are empirical and objective. This dependence on empirical evidence, no doubt, resulted in great progress in their material science. However, this also created a situation where people, in spite of materialistic pleasure, wealth, and power, were unable to find peace. This was more so because they could not turn towards religion and scriptures for support, as those were already overthrown from their world. Coming to the context of India, we find that the occupation of India by the West resulted in a clash of philosophy of the nation, with ideals of renunciation and self-control on one side, and idea of self-enjoyment and materialistic pleasure on the opposite. There is no doubt that the Western influence has enlarged the scope of material lives of Indian people. However, it also shook the religious and spiritual conviction of people that had helped in keeping India united and contented for a long time. The seed of doubt on its own conviction and beliefs resulted in a nation which is frustrated and confused. Like their Western counterparts, people of India are also at a crossroad of having some understanding of the futility of material pleasure and at the same time not finding its religious strength to attain peace. The author concluded the chapter by saying that in this time, the need of the hour is for the divine incarnations who can rescue the nation and reverse the downward trend in religion to a path of peace. Discussing, deliberating, and meditating on the holy lives of spiritual leaders in this time will help us to bring back the transcendent knowledge back to the human world. Pranam Maharaj. Okay, we're done very short. Okay. Anyway, good summary, no doubt about it. I think others will take a hint from this that summary should be summary and not reading the whole thing. Okay, shall we start with questions? जी महाराज. तो कौन करेगा पहले क्वेश्चन? एक मिनट, just a minute. दिलीप भाई, are you ready? Yes महाराज, बिल्कुल ready. I'm ready. अच्छा, आपके दर्शन नहीं हो रहे आज, क्या करूं मैं? क्या करें महाराज जी, अब तो बनारस आके ही बैठना पड़ेगा. आइए जी. हाँ, पहले नंबर आज का है. हाँ, पहला मेरा सवाल है, how is it a national endeavor? Realization is an individual experience. महाराज जी, फर्स्ट पेज पर है ये. क्या है? फर्स्ट पेज पे ये सवाल है मेरा, how is it a national endeavor? Realization is an individual experience. महाराज जी, ये नेशनल एंडेवर कैसे इंडिविजुअल एक्सपीरियंस हो सकता है? फर्स्ट पैराग्राफ की आखिरी तीसरी लाइन नीचे से, फर्स्ट पैराग्राफ है कि आप एक मिनट ठहरो. यस, पेज निकाल देता हूँ. हाँ, पहला ही पेज है इंट्रोडक्शन. पहला पेज में है. हाँ, पहले पेज है जी. The self direct realization knowledge. Yes. है इंडिविजुअल एंडेवर, ये बोल रहा है ना? हाँ, यस महाराज जी. यस, हाउ कैन बी ए नेशनल एज ए. ठीक है. वो कहते हैं from very ancient times India has taken entities beyond senses like God, yes, self, next world, etc. to be real. Yes. And has employed its all effort to their direct realization. Yes. As a result, that it has made their invention direct knowledge the final goal of national as well as individual endeavor. Yes, Maharaj. National endeavor. धर्म जो है वो राष्ट्र का एक अंग हो गया है. आप आइए ना, बनारस आइए, आप तो आगे देखेंगे. विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ को दर्शन के लिए जी केवल भारत, उत्तर भारत से नहीं, दक्षिण भारत से, बंगाल से, पंजाब से
कितने लोग आ रहे हैं, ये इंडिविजुअल एंडेवर है कि नेशनल एंडेवर है, ये राष्ट्रीय समस्या, राष्ट्रीय प्रभाव ही तो है। ठीक है, तो बराबर, ओके। लोग जाएंगे कन्याकुमारी जाएंगे तो सारे भारत के लोग कन्याकुमारी जाते हैं, तो ये नेशनल एंडेवर हो गया। तो महाराज जी, ये पूरी स्पिरिचुअलिटी इज ए नेशनल एंडेवर। नहीं, स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे धर्म की बात कर रहे हैं अभी। आगे नहीं, देखो रिलीजन की बात की, कहा किया उन्होंने, इंडिविजुअल डायरेक्ट नॉलेज है, तो उन्होंने कहा एज वेल एज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्पिरिचुअल आइडियाज एंड कंट्रीज नोटिस द डिफरेंस बिटवीन them from very ancient time it taken entity beyond the senses। भारत ने हमेशा से ये विषयों के परे की जो सत्ता है, जिसे ईश्वर कहते हैं, और भारत के मरने के बाद जो जन्म आएगा, भारत ने सत्य माना, रियल लिया है, और उसने सारा भारत ने यह प्रयत्न किया है कि उसका साक्षात अनुभव हो सके। इसका परिणाम ये हुआ कि उनका इमीडिएट एक्सपीरियंस यानी ईश्वर दर्शन और डायरेक्ट ज्ञान जो है, प्रत्यक्ष ज्ञान, ये हमारे जीवन का गोल हो गया। भारत का भी जीवन का भी, यानी राष्ट्र का भी गोल हो गया, और व्यक्ति का भी गोल हो गया। ये बात जी जी महाराज जी, बराबर जी, बात इस चीज को जी बराबर समझना है। इसलिए कि केवल एक आदमी बैठ के अपने कमरे में बैठ के ध्यान करता हूँ भगवत दर्शन के लिए, लेकिन सारा भारत जा रहा है विश्वनाथ दर्शन के लिए। जी बिल्कुल, नहीं, सारे भारत में अध्यात्म जो है, सारे भारत में धर्म जो है, सारे भारत में घूम रहा है। सारे भारत की रीढ़, सारे भारत का सार जो है वो धर्म में आ गया। यस, आज तो हो गया है पूरा। मेरा नेक्स्ट सवाल है, was there any religion prior to Vedic age, and if yes, how it vanished, which required for the re-establishment of religion? पेज नंबर 2 पे लिखा है कि re-establishment of religion, it means that there must be some prior religion also. पेज नंबर 2 में क्या लिखा? पेज नंबर 2 के ऊपर की 2 लाइन है। Vigorous appointment, even today, strong conviction, their austerity, self-control, yearning, everything direct. नहीं महाराज जी, ये प्लीज, ये सेकंड पेज का नंबर 3 जो है, उसकी 6ठी लाइन है, टू री-एस्टैब्लिश रिलीजन। एक मिनट, यस, these names have been used. It is, महाराज जी, पेज नंबर 2 पॉइंट नंबर 3, उसकी 6ठी 7वीं लाइन है ये। These names have been used since Vedic times to describe the teachers who came to re-establish religion. Yes. तो अब ऐसा है कि पहले भारतीय संस्कृति क्या हुआ था, तो मैंने पकड़ा, अच्छा है, बढ़िया पकड़ा है, री-एस्टैब्लिश रिलीजन। तो मतलब पहले रहा होगा, फिर चला गया होगा, और फिर री-एस्टैब्लिश किया होगा। तो ये ऋषि तो बार बार हमेशा आते रहे हैं। अब वो उसके पहले क्या हुआ था ये नहीं जानते। ये नहीं जानते कि भारतीय संस्कृति उसके पहले कितनी थी, उसका ह्रास हो गया था क्या, गिराही धर्म से क्या ग्लानि हुई थी क्या, जैसे कृष्ण आए थे, ये नहीं मालूम। लेकिन वैदिक ऋषि निरंतर हमेशा यहाँ पर उत्पन्न होते रहे हैं, ये बात है। बस मैं नहीं कह सकता कि उस समय क्या पहले कहीं धर्म की हानि हुई थी क्या, ये नहीं कह सकता। या फिर पहले धर्म एस्टेब्लिश भी था या नहीं, ये भी नहीं कह सकता। ऐसा है कि कहीं ना कहीं किसी जमाने में, कभी तो नहीं जैसे अभी है। तो आप यदि अफ्रीका में जाओगे तो वहाँ तो सब जानवर जैसे ही रहते हैं ना लोग, बराबर, बिल्कुल। तो अब कहा यहाँ पे कभी न कभी 10,000 20,000 साल पहले क्या हुआ होगा, मनुष्य कैसे होंगे, ये तो कहना मुश्किल है ना। जी हाँ, बराबर, जी जी, तो कहीं ना कहीं तो प्रारंभ हुआ होगा। जानवर जैसे होंगे, लड़ाई झगड़ा करते होंगे, तब एक अवतार आया, उसने शांति प्रदान की, उसके बाद में चलता रहा, उसके बाद में फिर कुछ हुआ, ऐसा चलता रहा होगा। अच्छा, बराबर, जी जी। यानी पहली बार रिलीजन हमारे सामने वैदिक युग में आया। उसके
पहले था कि नहीं था ये कहना बराबर, that is only I want to know. Right महाराज। अब पेज नंबर 3 पर फर्स्ट पैराग्राफ की 11 लाइन है। मैं पढ़ने में आप कहे तो पढ़ूं, क्योंकि वो लिखा हुआ है, Sakya philosophers came to the conclusion that endowed with good qualities such as purity, self-control, etc., they had acquired infinite knowledge, but that an intense desire to do good to the people have prevented them for a time from being merged in the real nature of the self of infinite glory. Plunged instead into the all-powerful Prakriti, by virtue of that desire, they had come to know its powers to be their own, and possessing the special powers, they had good to men in an infinite number of ways for one cycle, and at last became completely identified with the self. Now, in this case, my question is, what is the meaning of prevented them from the self infinite glory? ऐसा है कि वो क्या है कि वो भगवान के लिए लोगों के कल्याण की कामना उनके अंदर आई, है ना? हाँ। Desire to do good for the people. Yes. इसके कारण वे समाधि में लीन नहीं हो सके। हाँ, एक्वायर्ड इन्फिनिट ज्ञान प्राप्त करके वो जगत भगवान के अंदर या परमात्मा में अपना रियल नेचर जो सेल्फ है, आनंद है, इन्फिनिट ग्लोरी वाला हमारा आत्मा है, उसके अंदर वे लीन नहीं हो सके, क्योंकि उनमें जगत के कल्याण की इच्छा उत्पन्न हुई जिसने उनको बाहर खींच लिया। ओके, जी। ठीक है, बराबर महाराज जी। So they have done a better work for the society instead of उनमें ईश्वर में लीन हो जाने की। उन्होंने जगत कल्याण किया ना। हाँ, वही जगत कल्याण किया जी महाराज जी। हाँ, पेज नंबर 6 पे लिखा है, why incarnation has to retain the memory of these previous lives. हाँ, ये incarnations वाले previous life की memory क्यों retain करते हैं? कौन सा है ये? सर महाराज जी, पेज नंबर 6, 9, पॉइंट नंबर 9, आखिरी लाइन है। Being always free from the messes of Maya, he retains the memory of his previous lives. पेज नंबर अधिकारी पुरुष जगत कल्याण के लिए करते हैं, उसी के साथ में है ना ये? नहीं महाराज, ये मेरे पास इंग्लिश है, नंबर 9, पेज नंबर 6 पे 9वां पॉइंट है, और उसके आखिरी जी, being always nature is pure, awakening alike jiva never get entangled in the bonds of action. क्या प्रश्न बोलो आप? प्रश्न नहीं, मेरा है, being always free from the messes of Maya, he retains the memory of his previous lives. Why incarnation has to remember the previous life? तो तुम्हारा प्रश्न क्या है? Yes, why the incarnations people have to retain the memory of the previous life? यानी हाँ, उनमें माया उनकी मेमोरी क्यों रहती है? हाँ महाराज जी, ये लिखा है, ये जो अवतार पुरुष ये आते हैं वो पुरानी मेमोरी भी याद रखते हैं। इसका अर्थ उनमें वो उसकी पहले के जन्म की स्मृति रहती है। हाँ, वो क्यों? प्रश्न रहती है, क्यों रहती का क्या मतलब? अच्छा, नहीं, मैं ये पूछना चाहता था कि यानी वो पुरानी चीजें भी याद रख के अवतार पुरुष फिर से जन्म लेते, जो त्रेता युग में आए, द्वापर युग में आए, तो द्वापर की पूरी मेमोरी इनको रहती है। उनको याद था कि याद करते हैं कि हम 200 साल पहले जब आए थे तो हम कैसे थे, वो याद रहता है उनको। हाँ, वही। अच्छा, यानी राम जी को जब कृष्ण बन के आए तो कृष्ण को ये राम क्या थे वो उनको मालूम था। हाँ, श्री राम कृष्ण आए ना, श्री राम कृष्ण ने कहा कि जो राम था, जो कृष्ण था, वो अब राम कृष्ण आया। बराबर जी। और श्री राम कृष्ण कहते थे कभी कभी कि मैंने ऐसा किया था, मैं जाता हूँ, ऐसा किया था। हाँ। और माँ शारदा गई थी दक्षिण में, तो पहचान गई कि ये मैंने पहले सीता के रूप में ये स्थान मैंने देखे थे। बराबर जी। बराबर जी महाराज, करेक्ट।
Now my next question, Swamiji says avatar comes in India more than any other place in the world because it is a pious place. But in Gita, Sri Krishna says in chapter 4, slok 4, जी, अच्छा, तुम्हारा ये कहना है कि भारत में हाँ, बार होते हैं तो मतलब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं स्वयं का सृजन करता हूँ, अर्थात शरीर धारण करके प्रकट होता हूँ। यहाँ तो कृष्ण भगवान गीता में ये कहते हैं और स्वामी जी ये कहते हैं कि पवित्र भूमि है, इसलिए अवतार पुरुष यहाँ आते हैं। तो दोनों कारण है ना? हाँ, दोनों कारण, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। अरे नहीं, क्यों? गीता में ये तो नहीं कहा ना, हाँ, जहाँ धर्म होगा वहाँ, जहाँ धर्म की ग्लानि नहीं होगी वहां मैं नहीं आऊंगा, ऐसा कहा है क्या भगवान? नहीं वो नहीं कहा, पर जहाँ जहाँ ग्लानि होगी वहां जरूर आऊंगा, ये कहा ना। हाँ, वो ग्लानि होगी वहां पे आऊंगा, लेकिन जहाँ पे धर्म की ग्लानि नहीं होगी वहां नहीं आऊंगा, ऐसा तो नहीं कहते। नहीं। अच्छा, तो महाराज जी जहाँ धर्म की ग्लानि नहीं होगी वहां आने, तो फिर अवतार पुरुष को आने की जरूरत क्या पड़ती है? काय के लिए आएंगे? जब कोई तकलीफ होगी, पृथ्वी पे माया ज्यादा होगी, इसलिए आता है कि ये सब खत्म कर दे। अरे वो अपनी लीला करने के लिए ऊपर बैठ के वैकुंठ में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। हाँ, ये बात बराबर जी महाराज जी, ये बात समझ में आती जल्दी। अच्छा, और भी सोचो इस चीज को कि अफ्रीका में तो कभी नहीं आए। हाँ, कभी नहीं आए, क्योंकि उनका यानी जीसस क्राइस्ट भी आए तो यूरोप में आए, अफ्रीका में तो कोई नहीं आया। इतना बड़ा देश है, क्योंकि उन लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड एक्सेट्रा भिन्न है। जानवर जैसे अधर्म के स्तर पर रहते हैं, वहाँ धर्म का ऊंचा कैसे करेंगे? बाप रे, मुश्किल है। ओके, अच्छा, राइट। श्री रामकृष्ण आए, भारत में आए, इसलिए श्री रामकृष्ण को भारत के लोग कुछ समझ सकते हैं। हाँ, इस स्थान पे जाएंगे तो श्री रामकृष्ण को कोई समझेगा कि नहीं, अरे कुछ नहीं जानता है, ये पढ़ लिख नहीं सकता, बात भी नहीं कर सकता, ऐसा बोलेंगे श्री रामकृष्ण। बराबर, बिल्कुल महाराज जी। अब ये महाराज जी मेरे दो जनरल क्वेश्चन है इसी के अंदर। आर स्पिरिचुअलिटी एंड नेशनलिटी डिफरेंट? Because we find that the nation originally known Sindhu was by passing of time, different nations invented number of times and also kings and divided the nation in several parts because there was no nationality and patriotism. Am I correct? बिल्कुल ठीक बात है। भारत में धर्म तो धर्म ही धर्म था। हाँ, लेकिन राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म नहीं था, बराबर, पेट्रियटिज्म नहीं था। हाँ, आइडिया ही नहीं था। ये आइडिया ही नहीं था कि भारत में धर्म है, यानी भारत में एक राष्ट्र का आइडिया ही नहीं था। हाँ, दैट इज यस, राष्ट्र का भाव ही नहीं था जी। इसलिए तो बाहर से लोग आके सब कर गए। अच्छा, राइट जी। अब आखिरी सवाल है, as and when required the avatar had come like Ram and Sri Krishna and they rescued the people from Rakshas and people like Kans, how they have taught the realization of the Brahman beyond Maya? जब गीता पढ़ो तो पता चल जाएगा जी, रामचरितमानस पढ़ो पता चल जाएगा जी। उन्होंने किस प्रकार से किया उसको पढ़ो तो सबका सब पढ़ा जाएगा, सबको बजाएगा। नहीं तो इन्होंने ये इनको माया कैसे सीखा, ब्राह्मण बियॉन्ड माया, इन राक्षस को, कंस को और रावण को? हाँ, ये ब्राह्मण का ज्ञान कैसे दिया? क्या किया? कंस और रावण को राम और श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का ज्ञान कैसे दिया? नहीं, पेज बोलो तो पेज बोलो। नहीं, पेज नहीं है महाराज, देयर इज नथिंग। ये मेरा सवाल था, as and when required the avatar had come like Ram and Sri Krishna and they rescued the people from the Rakshas and people like Kans, how they have taught the realization of Brahman beyond Maya to them? नहीं, वो तो उन्होंने उसके बाद में गीता का उपदेश दिया। गीता का उपदेश पढ़ो, उसमें ब्राह्मण का वर्णन मिल जाएगा। तो कंस मारने काटने से क्या लेना देना है? नहीं, तो कंस को मारने के बाद क्या उपदेश दिया था कृष्ण ने? मानस पढ़ो, भगवान राम ने उपदेश दिए हैं, श्री कृष्ण ने उपदेश दिए हैं, अपने जीवन के द्वारा उन्होंने बताया है कि ब्रह्म जगत माया से भिन्न है।
जो उनके जीवन से पता चलता है। तो हाँ वो नहीं, वो बराबर, पर इन दोनों को तो नहीं दिया था ना, जब इनको मारा, कंस को और रावण को। अरे वो तो बोलते हैं कि कंस को मारा तो वैकुंठ में चला गया। हाँ वही मेरा पूछना था कि इन्होंने कैसे। नहीं नहीं नहीं, वो तो क्या, कंस को मारा तो वो मरना के बाद क्या वो नरक में थोड़ी गया, भगवान के हाथ से मारा गया तो वैकुंठ में चला गया। अच्छा अच्छा, हाँ भगवान के हाथ, राइट। बस महाराज जी प्रणाम, मेरा यही सवाल। अच्छा अच्छा भाई, जी चलो सुबीर मुखर्जी, सुबीर मजूमदार। प्रणाम महाराज जी। हाँ भाई। हाँ महाराज जी, पहला सवाल था वो, does an incarnation have previous births and lives like us? What do you mean? श्री रामकृष्ण says, जो राम जो कृष्ण वो राम कृष्ण। तो श्री रामकृष्ण के वो पहले जन्म हुए थे। तो जितने incarnations हुए हैं, these are their previous lives. That is what it means, ना? हाँ, इनकारनेशन के वो पहले वाले इनकारनेशन जो है उसके प्रीवियस लाइफ है। मतलब every incarnation is the next life. जैसे ऐसे 10 अवतार हैं, तो every incarnation is a fresh birth for them. Is that right, महाराज? अरे नहीं। अच्छा। अरे जो मत्स्य अवतार है, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ। अरे वो उसका मत्स्य अवतार का अगला, अरे कूर्मा अवतार का पहले का जन्म है मत्स्य अवतार। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ महाराज। तो ये 10 अवतार जो है एक के बाद एक में लगे हुए हैं, एक ही अवतार के 10 रूप हैं। हाँ, 10 जन्म हुए हैं अवतार ऑफ द 10 अवतार, मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि एक ही अवतार के 10 जन्म है। हाँ, क्योंकि 4th चैप्टर में कहते हैं ना, वो बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हाँ तो बोला हुआ है, यहाँ तक कि जीसस क्राइस्ट भी बोलते हैं, उनका जो है बिफोर, मैं इसके पहले ये था, जोसेफ था, क्या था, ऐसा कुछ बोलते हैं। अच्छा अच्छा, जीसस आल्सो हैज मेंशन्ड इट इन हिज वर्ड्स। ओके ओके महाराज जी, मैं देख रहा था इस्लाम धर्म में, और वहां पे दे हैव दिस कंसेप्ट ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना, जब धर्म की ग्लानि होती तो हम आते हैं, तो उनमें भी एक ऐसा कंसेप्ट है जहां वो वर्ड यूज करते हैं मुजद्दिद। जैसे अल गजली था, जिसका बारे में हमने पहले पढ़ा था महाराज, तो ही इज सपोज टू बी रीबर्थ ऑफ टू रीएस्टैब्लिश्ड रिलीजन अगेन, द प्योरिटी ऑफ द रिलीजन ऑफ इस्लाम रीएस्टैब्लिश करने के लिए ये मुजद्दिद आते एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, हर 100 साल में आते। ये उनके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट है, ये मैं वैसे शेयर कर रहा हूँ महाराज, तो ये कहना चाहे। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज जी, why did the West lose faith in God? Was it only because they could not reach him through senses and materialistic investigations? No, they are all materialists. They are not interested in God. Yes. So initially West जो है वो तो materialistic ना। जी महाराज, हाँ, क्योंकि थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी है, लेकिन बाकी तो पक्का मटीरियलिज्म है। हाँ, क्योंकि जब गॉड का कोई प्रश्न नहीं उनके लिए। हाँ, when Christ came, तब there were followers, there was a religion, Mary was also, लेकिन they lost interest in that, and they became more and more materialistic. That is it. They are materialists, basically materialists. Then why were not incarnations born more frequently in the West, Maharaj ji? Yes, that is correct. ऐसा क्यों हुआ? Because there is no, वो जिन्हें कहा ना, दो कारण हैं जो अभी बातचीत हो रही थी। एक तो ये कि भारत में क्यों इनकारनेशन हो रहे हैं, जो प्रश्न उठाया था ना दिलीप भाई ने, जी धर्म की ग्लानि हो रही है, तो क्या भारत में ज्यादा धर्म की ग्लानि होती है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे भगवान जन्म ले सकते हैं, यहाँ पे सारा एटमॉस्फेयर उनके इसके उपयोगी है, यूजफुल है, इट इज बेनिफिशियल और इट इज कंड्यूसिव टू गॉड। राइट। अफ्रीका में तो इतने 1000 साल हो गए, कभी भगवान नहीं आए, तो वो तो जानवर है, उन लोगों के में क्या भगवान आएंगे?
उसी प्रकार से मटीरियलिस्टिक वेस्ट है तो उसमें एक अवतार एक जीसस आया, उसको ही उन लोगों ने मार दिया, उसके बाद आया ही नहीं कोई। तो महाराज जी जो अवतार आता है इस चैप्टर में जो समझाया गया है कि जब धर्म की ग्लानि होती है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो त्राहिमाम की जैसे पुकार लगाते हैं और जो एक मिजरेबल स्टेट होता है और वहां से फिर आउट ऑफ कंपैशन द अवतार कम्स डाउन। नाउ इन द वेस्ट क्या ये स्टेट ऑफ मिजरी एंड जो सब कुछ है ये भी तो वहां भी तो होता है। अब वो भगवान को पुकारते हैं कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन भगवान आता क्यों नहीं है अगर इफ देयर इज सो मच डिग्रेडेशन। तो प्रश्न तुमने जवाब दे दिया, तुमने प्रश्न का जवाब दे दिया कि वो भगवान को पुकारते हैं कि नहीं, वे नहीं जानते। अच्छा अच्छा ठीक है महाराज, ठीक है। तीसरा और लास्ट सवाल महाराज, हाउ डिड श्री श्री ठाकुर ब्रिंग अबाउट रीजनरेशन ऑफ धर्मा व्हेन ही केम? क्यों उधर ये लीला प्रसंग में पढ़ो, सारा डिटेल में उन्होंने 7-8 पॉइंट्स दिए हैं। अच्छा हाँ, बेसिकली देखो तो मैं शॉर्ट में भी देख लेते हैं 4-5 पॉइंट्स। हाँ ये मैं सुनना चाह रहा हूँ महाराज आपसे। अपनी लाइफ के द्वारा, ओके, उसके बाद में उन्होंने अपनी टीचिंग्स के द्वारा, जी महाराज, उन्होंने डायरेक्ट डिसाइपल स्वामी विवेकानंद और डायरेक्ट डिसाइपल्स को बनाया, राइट। उनको उन्होंने कमीशन किया कि तुम जाओ स्वामी विवेकानंद को आगे जगत का कल्याण करो। वो तो समाधि में लीन होना चाहते थे। ब्रह्मानंद जी ये सब के सब लोगों ने कितना किया, ठाकुर का ऑर्डर था उनको कि तुम सब जगत का कल्याण करोगे। लाइफ के द्वारा, टीचिंग्स के द्वारा, डायरेक्ट डिसाइपल्स को बनाने के द्वारा और डायरेक्ट डिसाइपल्स को करने के लिए धरना। उसके बाद एक धर्म संघ की जी उनको सबको कहा कि एक साथ रहो, और उसके बाद हाउस होल्डर डिसाइपल्स को भी तो ट्रेन किया। जी महाराज, और श्री श्री माँ को भी उन्होंने एस्टेब्लिश किया महाराज, है ना? श्री श्री माँ को, माँ शारदा को भी उन्होंने एस्टेब्लिश किया। उन्होंने कहा कि जो मैं नहीं कर सका वो तुम करोगी। हाँ, तो बहुत सारे पॉइंट है और भी है, वो उन्होंने टीचिंग्स दिए हैं और काफी डिटेल में है ये सब चीजें। और महाराज जी शिवानंद वाणी में स्वामी शिवानंद जी ने मेंशन किया है कि उनके आने के बाद सब हरि सभा वगैरह ये सारी चीजें शुरू हो गई है। जैसे उन्होंने कहा था कि जगत की कुंडलिनी को उन्होंने जगाया, ऐसा कहा था ना? हाँ, तुम जवाब तो दे रहे हो तुम्हें, यानी वो उन लोगों ने, उन्होंने खुद अपने एक संघ की स्थापना की और जितने भी उस समय के प्रचलित संघ इत्यादि थे, हरि सभा इत्यादि जो भी था, ब्राह्मण समाज इत्यादि में जा जाके उन्हें पुनरुज्जीवित किया। जी जी जी, ठीक है महाराज जी। मैं आपसे सुनना चाह रहा था द एंटायर लॉट, मेरे पास 2-3 पॉइंट आ रहे थे, आपने बहुत अच्छी तरह बता दिए सारी। लीला प्रसंग पूरा चैप्टर है, उसके ऊपर 7-8 पॉइंट सब लिखे हैं। जी जी जी, ठीक है महाराज जी। दैट्स ऑल महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। हितु घोष, अब बोलो। हितु घोष जी, प्रणाम महाराज। हाँ, मेरा पहला प्रश्न है, what according to the Sankhya Shastra was the supreme ruler if there was no existence of God? So Sankhya does not believe in a supreme ruler. So पुरुष और प्रकृति, पुरुष बहुत सारे पुरुष हैं। पुरुष यानी आत्मा, मेरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा, सैकड़ों आत्माएं अलग अलग हैं। और प्रकृति है, प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है, लेकिन पुरुष में शक्ति नहीं है, प्रकृति में शक्ति है। जैसे मोटर है तो मोटर में इंजन है, उसमें 10 हॉर्स पावर है, और आदमी जो चलाता है उसमें तो आधा 1/4 हॉर्स पावर भी नहीं है। लेकिन आदमी जब चला बैठ जाता है मोटर में तो मोटर चलने लगती है।
मोटर इतनी बड़ी है, इतना पावर है, उसके अंदर इंजन है, 100 हॉर्स पावर का इंजन होगा, लेकिन वो अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही आगे ड्राइवर बैठ जाता है, वो चलने लग जाता है। तो ये ड्राइवर जो है वो है चैतन्य आत्मा, और जो है प्रकृति जो है वो प्रकृति के साथ सारा कार्य कर रही है। तो ये अलग अलग है। एक 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 सभी ट्रेन, सैकड़ों ट्रेन है, तो अलग अलग ट्रेन में अलग अलग ड्राइवर है। एक अकेला ड्राइवर सारी जगह को कंट्रोलर नहीं है। प्रकृति है वो डोंट एक्सेप्ट और डोंट नीड दे कंट्रोलर। कंट्रोलर की क्या जरूरत? अच्छा, हम थोड़े कि भाई जग कोई कंट्रोल होना चाहिए, ईश्वर होना चाहिए। सांख्य नहीं मानता, क्या जरूरत है? तो कोई कंट्रोलर की, किसी भी कंट्रोलर की जरूरत नहीं है, सब इंडिविजुअली करते हैं। जैनिज्म मानता है क्या? जैनिज्म भी इसी प्रकार का है। अलग अलग आत्मा है और वो है बस। वहाँ कहा जैनिज्म में अवतार होते हैं तो वो कंट्रोलर थोड़ी होते हैं। यानी उनके यहाँ पे जो तीर्थंकर हुए ना, प्रॉफिट हुए जी, तो वो लोग जो होते हैं महावीर इत्यादि, तो उनके जगत के कंट्रोलर नियामक थोड़ी होते हैं, वो तो सिद्ध पुरुष होते हैं बस। तो क्या जरूरत है जगत का कंट्रोलर? प्रकृति चल रही है, चल रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरा सेकंड क्वेश्चन है महाराज, फ्रॉम द टेक्स्ट, कम लेट अस डिस्कस एंड मेडिटेट ऑन दैट होली लाइफ, फ्री फ्रॉम स्लाइटेस्ट टेंट ऑफ लस्ट, and thus purify ourselves. Now my question is, would it really work to purify oneself only meditating and discussing about that holy life without practicing those qualities in one's own life? Good question. आप फिर से बोलो तो, सॉरी मैं वो ईयरफोन लगा रहा। Would it really work to purify oneself only meditating and discussing about that holy life without practicing those qualities in one's own life? All right. Then what you do is you read newspaper and see TV and put your mind, fill your mind with dirty things. Is that okay? And then keep those things in your life. जी, Got your point? The point is कि जब तक तुम होली लाइफ को नहीं पढ़ोगे, उनकी जीवनी को सुनोगे नहीं, मन को पवित्र नहीं करोगे, तो अपने जीवन में उतारोगे नहीं। इसलिए उसकी आवश्यकता है। अच्छा अच्छा, करता हूँ कि it must be practice, no doubt about it. जी जी, ये जूम मीटिंग कर लिया, जूम में बढ़िया बढ़िया बोल लिया और एक नेक्स्ट मोमेंट उसको भूल गए, 7 दिन तक भूले रहे, इससे कुछ नहीं होने वाला। जी जी, बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया है, खुद ही करो उसको जी। हम कुछ नहीं प्रैक्टिस करते, अपने जीवन में बात करते हैं जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस। लेकिन पहले मन को भर के रखो। श्री रामकृष्ण ने कैसी कठोर साधना की है, तब पढ़ोगे तब लगेगा उसका। एक ठाकुर बोलते हैं 1/16 एक 16वां भाग तो करो, मैंने जितना किया। अरे 1/16 नहीं, 100 तब ठाकुर तो करो। तो ये पढ़े बिना तो नहीं पता चलेगा ना। जी जी जी, तो पढ़ना आवश्यक है, लेकिन उसको जीवन को उतारना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, पहले पढ़ के वो मन उधर हो जाए, फिर उसको जीवन में उतारो। ठीक है, ठीक है। प्रणाम महाराज। हाँ, सतीश वेग। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। हाँ बोलो। हाँ महाराज, मैं अभी पूछता हूँ। पूछ रहा हूँ महाराज। फर्स्ट क्वेश्चन महाराज, हाउ पर्सनल गॉड इवॉल्व्ड ड्यूरिंग फिलोसफिकल एंड डिवोशनल एजेस। 2 एजेस की बात की है ना अपने स्वामी जी ने। तो हाउ पर्सनल गॉड इवॉल्व्ड आउट ऑफ ऋषि एंड गुरु। पहले तो कॉन्सेप्ट था कि कहा ना कि पहले गॉड की धारणा नहीं थी। हाँ जी, ऋषि होते थे, फिर अपना प्रकृति लीन होते थे, उनमें स्पेशल पावर होते थे। वो वस्तुतः वे लोग इनकार्नेशन ही थे, अवतार ही थे, लेकिन नाम नहीं दिया। जैसे याज्ञवल्क्य, आप
वेदांत उपनिषद रागिवल का है, उसको पढ़ो तो पता चलेगा कि उनमें कितना ज्ञान था। जी इस प्रकार जी से अब यदि अभी होते तो हम उनको अवतार मान लेते, जी महाराज। गुणावतार इत्यादि कुछ न कहीं हम मान लेते। आजकल सब जगह है, आप कहीं भी जाइए तो बिहार में जाएंगे तो वहां पे कोई बड़ा महापुरुष होगा तो ये कहेगा कि अवतार है। यानी जब ठाकुर हुए थे ना तब उसमें सारे भारत में बहुत सारे अवतार हुए थे, मालूम है तुमको? जब ठाकुर हुए थे तो उसके साथ में बहुत सारे अवतार भी हुए थे। तो जो ऋषि है, महापुरुष है, उनको तुम अवतार कह दो। जी जी जी। विशेष शक्ति होती है, उसको अवतार मान लिया, ये तो मानने की बात है, ये और कुछ नहीं है। ठीक ठीक महाराज, ठीक महाराज, समझ गया महाराज। थोड़ी महाराज वो कौन थे जो ठाकुर के साथ जिनको अवतार कहा गया था? जो लोग कौन थे वो नित्यानंद क्या? नहीं अब वो बहुत सारे तो लोग थे, मेरे को मालूम है कुछ पहले, 20-30 साल पहले की बात है। कुछ लोग ऐसी बात करते थे, मैं कहीं गया था तो वो कहते थे कि लोग पहचानते नहीं है मुझको, मैं अवतार हूँ। एक व्यक्ति ने कहा भी था मेरे। अच्छा महाराज। अच्छा महाराज, सेकंड क्वेश्चन। National life of India was built on unique customs and practices so that everybody can realize the supreme goal by performing his duties according to his taste and stay in life. What were those customs and practices? वर्णाश्रम धर्म, सीधी बात है, बड़ा आसान है तो। ठीक ठीक महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, तो ये कोड्स एंड कस्टम सब कर दिए। तो आप धर्म व्याध भी जो है वो भी तो धर्म व्याध हो गया ना, व्याध होते हुए भी वो ज्ञानी हो गया। जी जी महाराज। शबरी जो थे वो भी ज्ञानी हो गई। राइट महाराज, राइट जी महाराज। How has the next question महाराज, how has the Western influence? इसमें कर्मयोग में पढ़ो, हेलो सुनो। जी मैं पढ़ा है मैंने महाराज। कर्मयोग में स्वामी जी ने वर्णन किया है। हाँ, व्याध का वर्णन किया है, व्याध का। तो उसने उसको शक्ति आ गई, उसने पक्षी क्या कर रहा था तो उसने ऊपर देखा तो पक्षी भस्म होके नीचे गिर गया। जी हो गया। फिर भिक्षा मांगने गया तो एक गृहस्थ के घर में गया तो उसने अंदर से माँ ने कहा कि अभी जरा ठहरो, मैं आती हूँ। तो मनी मन गुस्सा आया कि वो जानती नहीं है कि मैं कैसा हूँ, मैं भस्म कर सकता हूँ और ये मेरे को ठहराती है, वेट करने को कहती है। तो धीरे से बाद में कहा कि बेटा मैं पक्षी नहीं हूँ, मैं अपने पति की सेवा कर रही हूँ, तब उसके बाद आऊंगी। अरे बाप रे, ये तो जानती है। तो फिर उसने कहा था कि मैंने सब किया है, मैंने मुझे जो ज्ञान इत्यादि हो गया है यह सब पति की सेवा करने के द्वारा ही हुआ है। धर्म व्यास ने भी उस सन्यासी को उपदेश इत्यादि दिया था। तो मतलब यह है कि इसके सभी मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी इत्यादि हो सकती है। ठीक है जी महाराज जी, क्लियर महाराज। How has the Western influence broken down these customs and practices? Will the Western materialistic culture supplement our national life, national way of life, or supplant it altogether? प्रश्न क्या है तुम्हारा? Maharaj, how has the Western influence broken down these customs and practices? How has the Western influence broken down these customs and practices, or will the materialistic culture supplement our national life or supplant it? रिलीजन जो है, एक मिनट तुम्हारा प्रश्न मैं फिर से देखता हूँ। एक मिनट में तुम्हारा ईमेल देखता हूँ। सतीश क्वेश्चन, तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन, हाउ कैन वन वॉक ऑन वाटर? नहीं महाराज, उससे पहले वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। ये नहीं है, उसके पहले बाद वाला है। एक मिनट। सतीश वेग,
तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन, कैन रिलीजन बी रिकंसाइल्ड विद साइंस? Can religion be reconciled with scientific science or basic scientific temperament? यही प्रश्न है ना? जी उससे पहले भी था क्वेश्चन महाराज। ये तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस ने हमारी कस्टम्स को जो है ज्ञान, ये अपने योग शास्त्र जो है वो तो पूरा साइंटिफिक है, और साइकोलॉजी है, वेस्टर्न साइकोलॉजी, रिलीजन साइकोलॉजिकली उसको बताया है साइंटिफिक है, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो रिलीजन कैन बी रिकंसाइल्ड विद साइंस, उसी बेसिस पर किया जा सकता है। जी उससे पहले क्वेश्चन ये था महाराज कि ये जो वेस्टर्न मटेरियलिस्टिक इन्फ्लुएंस था, क्या हमारी सारी नेशनल लाइफ को उसने चेंज कर दिया कि क्योंकि उसने सिर्फ ओनली सप्लीमेंट किया है? अब देखो कुछ तो इफेक्ट हुआ है, लेकिन चल तो रहा है। भारत जो है वो रिलीजियस कंट्री है, अभी भी बढ़िया है, बनी हुआ है, कुछ ज्यादा फर्क तो पड़ा नहीं है। यहाँ जब आपका जो कुंभ मेला होता है तब देख लेना क्या भयानक भीड़ होती है। यहाँ पे विश्वनाथ के दर्शन के लिए क्या भयानक भीड़ होती है। कहाँ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है, सच पूछा जाए तो। वेस्टर्न साइंटिफिक कल्चर materially supplement our national way of life और supplement it, और नहीं पूरी तरह चेंज तो नहीं कर सकेगा, उससे मदद मिल जाएगी और क्या है। हाँ सप्लीमेंट कर, सप्लीमेंट होना है। यानी क्या आदमी हो तो इतना नहीं खोल सके, नहीं इतना नहीं खोल सके उसको। जी खोलने में दिक्कत हो रही तो तुमको पहचान नहीं रहे थे। अरे ऐसा है कि ये आपने जो डेटा आ गए ना, ये आ गए हैं, मोबाइल फोन आ गया तो रिलीजन से उसको मदद ही तो मिली है। जी महाराज, जी महाराज, मोबाइल फोन से मदद भी मिली है। लेकिन ऐसा है कि याद रखो, हमेशा भोगवाद जो है वो हमेशा प्रबल रहता है। तो साइंटिफिक डिस्कवरी इत्यादि से भी भोगवाद जो है उसको वृद्धि तो मिलेगी जी, लेकिन वो धर्म को रिप्लेस नहीं करता। धर्म जो है जैसा है वैसा के वैसा ही बना। जी मतलब कि उनकी जो अगर हम पॉलिटिकल लाइफ और दूसरी लाइफ को जो इंस्टीट्यूशंस है उनको हम फॉलो करें तो हमारी सोशल लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन रिलीजन तो रह गई। नहीं, रिलीजन तो रहता ही है, आगे मानव की एक आवश्यकता है रिलीजन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, पेज 14 पर, there was an equal opportunity for all classes in ancient India to achieve highest ideal, namely supreme knowledge or liberation. Therefore there was no discontent. My question Maharaj, was there truly equal opportunity for all classes in as much as lower classes had no access to education, Vedas or even God, Vedas? उनके पास तो उनको एक्सेस नहीं दी जाती थी, उनको लोअर कास्ट को एजुकेशन और वेदास को। हाँ वो तो ठीक है, जो क्षत्रिय है तो जो लोअर कास्ट का वो युद्ध में भी तो नहीं जा सकेगा। और वर्णाश्रम धर्म का वो तो था और उसमें भले ना रहा हो, लेकिन जहाँ तक आध्यात्मिक जीवन का प्रश्न है, जैसा अभी हमने कहा है, धर्म व्याद की बात और वो महिला की बात, महिला पढ़ी लिखी नहीं हो। अरे आज भी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, कितनी पढ़ी लिखी हैं भारत में। आधुनिक भारत में भी अवस्था कैसी है, इलिटरेसी, विमेन में इलिटरेसी तो गाँव में जाओ अभी भी विद्यमान है ना। जी जी क्या करोगे उसमें? ठीक है महाराज, थैंक यू महाराज, प्रणाम। शिवानी। प्रणाम महाराज। हाँ महाराज, मेरा क्वेश्चन है पेज नंबर 7। Then taking hold of man's hand, he sets him on the path of religion. An effect is never produced without a cause, nor does Ishvara assumes a body in his Leela till a universal need demands it. When such a want becomes overwhelming, felt in every part of society, the infinite mercy of the Lord becomes as it were
crystallized, and he appears as the spiritual teacher of the world. So my question is, all spiritual teachers come in the form of incarnations when society requires, when society is in need of these spiritual teachers? कौन सा पेज नंबर 7 कितना है? पेज नंबर 7 Men spend their lives thinking that the world and its pleasures are all important. Eternal varieties like the self, Ishwar, liberation, etc. are looked upon as dreamland imaginations of poets of a bygone age to spend its delusions and darkness, right? आवाज नहीं आ रहा है। महाराज की आवाज नहीं आ रही। When shines like April free from Rahu, then taking hold of man's hand, he sets him right on the path. An effort is effect is never produced without a cause, nor does Ishwar assume a body in Lila until universe demands it. When such a want becomes overwhelmingly felt in every part of society, infinite mercy of Lord, as it were, crystallized and joyful teacher, a teacher of the world. Now, what is your question? What is your question? All spiritual teachers comes in the form of incarnation when society is in need. Now, question क्या है तुम्हारा? यही है क्वेश्चन महाराज, कि जब सोसाइटी को जरूरत होती है तभी स्पिरिचुअल टीचर्स आते हैं, अवतार लेते हैं। आते हैं, सत्य है। ठीक है, यही था मैम महाराज क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन पेज नंबर 3। Searching for the cause of the advent of these uniquely powerful persons, the Sankhya philosophers came to the conclusion that endowed with good qualities such as purity, self-control, etc., they had acquired infinite knowledge, but that an intense desire to do good to the people had prevented them for a time from being merged in the real nature of the self of infinite glory. तो my question is महाराज, बाकी articles में भी जैसा कि हम पढ़ते हैं, those who follow this purity, self-control, etc., they acquire some special kind of knowledge. So what kind of knowledge they are talking about? Spiritual knowledge, आत्मा परमात्मा का ज्ञान। अच्छा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा कोल्ड के बारे में है जी। History has recorded on page number 11, history has recorded in very clear terms that from ancient times the severe cold in the dominant western countries made men intensely body conscious. So my question is, how severe cold made them body conscious? अभी ठंड के दिनों में हमेशा बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं ना, कपड़ा पहनो कपड़ा पहनो। So this is the only reason. एक रीजन ये बताया है स्वामी जी ने, और ज्यादा भी रीजन हो सकते हैं, इसमें कोई बात। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उसको मेन रीजन मान के सारी बातें आगे बोली गई है ना, इसलिए। It is all about survival, ना? It is all about survival.